Hello students, how are you? So today we are going to start the second video of the chapter work, power, energy. I hope you have seen the first video and this is the second video. In the first video we have dealt about what is work, what is power and up to potential energy. And in this video we are going to start from the topic of kinetic energy. Now as you know very well, what is kinetic energy? Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion. Means when a body comes in motion, then the energy of that body due to its motion is called what? Kinetic energy. For example, if you throw a bullet by hand, then that will be not that much effective. But if that bullet is fired from a gun, then what happens? Then it becomes more energetic. Why? Because the velocity is more, speed is more. So the energy possessed by a body due to its velocity, due to its speed is called kinetic energy. Okay. So the definition of formal definition of kinetic energy you know very well. The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Now we are going to derive the expression for kinetic energy. Now we can say that kinetic energy is also the amount of work done by a body before it comes to rest. Means total amount of work done by a body before it comes to rest. We can say that. Secondly, we can also say that kinetic energy is actually the work done by a force which is trying to bring the body at rest. Means suppose a body is moving, एक बॉडी मूव कर रहा है, उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फोर्स दे रहे हैं. किस लिए फोर्स दे रहे हैं? उस फोर्स का काम क्या है? उस फोर्स का काम है बॉडी को स्टॉप करना. तो उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है? जो फोर्स बॉडी को स्टॉप कर देगा, उस फोर्स से कितना वर्क डन हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? काइनेटिक एनर्जी. अब हम लोग एक डेरिवेशन में जा रहे हैं, तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हम लोग को पता है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर. ओके. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. Because you know from the formula it is clear that kinetic energy is depending upon velocity. If v is 0, then kinetic energy is 0. If v is increased, kinetic energy is increased. If v is decreased, kinetic energy is decreased. So let us consider a body moving with a speed v. Okay, अब मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी इस जगह पर जब है तो उसका स्पीड v है. And we have applied a retarding force. We have applied a retarding force due to which after covering a distance of s, the speed becomes 0. The body comes to rest. मतलब if this is the body which is moving at a speed, at a velocity v, we have applied a force, and due to that force, retarding force, which is producing, and so F is what? F is the force and A is the retardation. A क्या है? Retardation है. Okay, तो A is the retardation. अब देखो, और मान लेते हैं क्या कि वो जो बॉडी एज डिस्टेंस कवर किया है, स्टॉप. यहाँ पे फोर्स दी तो यहीं पे नहीं रुक जाएगा ना, कुछ दूर जाकर रुकता है. It has covered a distance of s before stopping. Okay. अब देखो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? F into s. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा? F into s. Okay. Now come here. v square is equal to u square plus 2as. ये फॉर्मूला हम जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े हो तुम लोग. अब यहां पर जब हम फोर्स दे रहे हैं तो v कितना बन गया? 0 बन गया. और u कितना था? v था. तो u का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी. v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी.
तो इनिशियली बॉडी का वेलोसिटी कितना था v, अब कितना हो गया 0 हो गया। तो अब ओके, और ये रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन कितना है माइनस है। तो अगर हम इन वैल्यूज को यहां पे पुट करें तो 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा v स्क्वायर माइनस 2as। तो यहां से s का वैल्यू क्या मिला v स्क्वायर बाई 2a। तो अगर हम लोग अब आते हैं इसमें, तो f का मतलब क्या होता है न्यूटन्स लॉ से, f का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स m इंटू ए, और s का मतलब क्या होता है v स्क्वायर बाई 2a। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब ये जो वर्क डन है बाय द रिटार्डिंग फोर्स, उसी को तो हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो दिस फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड हियर, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, देखो we know that energy is the ability to do work, energy is the ability to do work। कोई भी काम करेंगे उसका एनर्जी का वो एबिलिटी जो होगा वो होता है वर्क, ओके। मतलब वर्क का जो एबिलिटी है, मतलब कोई एनी बॉडी कैन परफॉर्म वर्क ओनली इट हैज एनर्जी। तो व्हाट आई वांट टू से इज, सपोज ए बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड u and I have applied a force, and due to that force the speed become v, okay, in the distance s. So how much work I have done on the body, how much work I have done on the body, that is equal to what, that is equal to increase in kinetic energy. So what is actually the work energy theorem states that, the work energy theorem states that work done by a force on a moving body, work done by a force, work done by a force on a moving body is equal to what, is equal to increase, is equal to what students, increase in kinetic energy। समझ में आ गया। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और मान लो जिधर मूव कर रहा है हम उसी डायरेक्शन में फोर्स दिए, उसको पुश किए, उसको फोर्स अप्लाई किए, ये बॉडी इधर जा रहा है हम इसको इधर ही फोर्स देते हैं, तो उससे क्या होगा स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड साइकिल से जा रहा था, तुमने उसको धक्का दे दिया, उसका स्पीड क्या होगा बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो वर्क डन, तो ये जो हम लोग धक्का दिए, जो फोर्स अप्लाई किए, उस फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन क्या होगा, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन क्या काइनेटिक एनर्जी। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के पहले देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। एक बॉडी यहां पर है, इसका स्पीड है u, और हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर एक फोर्स देते हैं F, और इसके फोर्स के कारण एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स देने से बॉडी एक्सीलरेट करेगा A। तो वी आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स एंड दैट कांस्टेंट फोर्स इज प्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और मान लो कि ये एज डिस्टेंस जाते जाते, एज डिस्टेंस कवर करते करते इसका स्पीड कितना हो गया, इसका स्पीड हो गया v, ओके। तो फिर से समाप्त कर लेते हैं। एंड सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का मास कितना है m है। तो वी आर initially a body was moving with the speed velocity u, a force F is applied which produces an acceleration a, and after covering a distance of s the speed became v, okay, clear हो गया इतना। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन क्या होगा F इंटू एस, ओके, F इंटू एस, और F क्या होता है m इंटू ए इंटू एस।
अब हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो s का वैल्यू क्या होगा यहां से बोलो स्टूडेंट्स, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहां से हमको s का वैल्यू क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये आ गया ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये कट गया, तो क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये क्या है, W। अब जरा सोचो, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो सकता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो सकता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, और बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, इन फाइनल माइनस इनिशियल, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, दैट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट वी कैन से कि वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूव हो गया कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द वर्क डन। ओके, नाउ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, वो तो जो पहले बताया था, एंड डिराइव इट। तो ये रहा डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द, ये जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है वो छोटा सा पार्ट है, रिलेशन बिटवीन। तो ये क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो, हम जानते हैं कि दोनों चीजें मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एज वी नो मास इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मोमेंटम, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी का स्पीड बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, मोमेंटम भी बढ़ेगा। ओके, तो व्हाट इज द रिलेशन, देख काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग क्या डिराइव किए, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू 2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू 2m, और ये क्या बन गया, p का स्क्वायर। ओके, या फिर इसको ऐसे लिख लो, mv का होल स्क्वायर। अब व्हाट इज mv, mv क्या होता है, मोमेंटम। तो इसको अगर इधर ला दिए तो क्या मिला, 2mk इक्वल टू p स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं p इज इक्वल टू रूट ओवर 2mk। तो ये क्या मिला, ये व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या, या यहां से अगर डायरेक्ट हमको काइनेटिक एनर्जी चाहना निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल जाएगा, p स्क्वायर बाई 2m। हो गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम का ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, नाउ वी आर, अब जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कन्वर्सन। कन्वर्सन, देखो कन्वर्सन का मतलब क्या होता है, when you are seeing the video, you are in the room, और उस रूम में लाइट लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। What is the light doing? Tube light converting electrical energy to what? It is converting electrical energy into what? Into mechanical light energy. Fan, inside the fan there is motor which is converting electrical energy to mechanical energy. So the devices that we are having today, like tube light, fan, many other, I am going to name one by one, motor, generator, microphone, and many others. These devices are doing what? They are converting electrical energy of one form to the other. तो अब हम लोग को देखना है, तो कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी कैनॉट क्रिएट एनर्जी,
हम लोग एनर्जी बना नहीं सकते, वी कैनॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, बट वी कैन डू वन थिंग, क्या, वी कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. We are not creating electrical energy. The electrical energy is being created in some power stations, either by heat or by hydroelectric power, whatever method. And that energy, electrical energy, we are using at home and getting light, getting sound, getting heat, etc. etc. So, for ICC point of view, this part is very important. इसमें आईसीसी से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस बार भी 2020 में भी आया है कि एनर्जी कन्वर्सन, जैसे मान लो यहां पे बोल दिया साउंड टू इलेक्ट्रिकल, क्या होगा, माइक्रोफोन. अब अगर इसका उल्टा बोल दे, इलेक्ट्रिकल टू साउंड, ये क्या होगा, ये होगा लाउड स्पीकर. ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिकल टू हीट, क्या बोलते हैं इसको, ये हम लोग का हीटर हो गया. इलेक्ट्रिकल टू लाइट, ट्यूबलाइट. इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल क्या होता है, जो फैन में लगा रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर. और अगर इसका ऑपोजिट दे दे, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो क्या बोलोगे, डायनामो या जेनरेटर, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड देयर इज अ चार्ट गिवन इन द बुक वेयर वी कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आईसीसी में 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमें हर साल आता है. कुछ डिवाइसेस का नाम, यहाँ पे मैं कुछ डिवाइसेस का नाम लिखा हूं, अदर भी बहुत सारे हैं, जैसे थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या होता है, हीट टू करंट. जैसे ये करंट टू हीट था, तो हीट टू करंट में क्या होगा, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोकपल्स. तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको तुम लोग वहां से देख लेना और वहां पे हम लोग ये कर सकते हैं. ओके, तो ये पार्ट हम लोग का हो गया. अब आगे आते हैं. आगे आने के पहले हम एक दो हम लोग सम करते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे एनर्जी कन्वर्सन पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है, हाउ फास्ट शुड अ मैन वेइंग 600 न्यूटन रन दैट सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज 750 जूल. मतलब एक आदमी जिसका वेट दे दिया है 750 न्यूटन, वो कितना तेजी से दौड़ेगा, किस वेलोसिटी से दौड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी, सॉरी, उसका जो वेट है वो 600 न्यूटन है और काइनेटिक एनर्जी होगा 750 जूल. ओके, तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है. एक आदमी का वेट 600 न्यूटन है, उसकी स्पीड से दौड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी उसका कितना हो जाएगा, 750 जूल. तो पहले बात, हम ये वेट है और यहां पे जी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो W इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, mg. तो m क्या होगा, W बाई जी, 600 बाई 10 कितना निकला, 60. यूनिट क्या लिखोगे, kg. यूनिट पे ध्यान देना है फिजिक्स में, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 750. तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू 750. तो हाफ इंटू m कितना हुआ स्टूडेंट्स, 60 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 750. तो ये इससे कट गया. अब इसे काटते हैं 3 और 3 काटेंगे कितना, 5. तो वी स्क्वायर इक्वल टू 25. तो v कितना आ गया, v आ गया √25, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो अगर वो पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 750 जूल. ओके, नाउ वन मोर सम. हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग कार्ट अफेक्टेड इफ द
velocity is double, how is the kinetic energy affected? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि how is kinetic energy affected if velocity is doubled? ओके, तो बॉडी का मास सेम है, तो अगर मान लेते हैं लेट v1, v2 बी द वेलोसिटीज, तो v2 क्या हो जाएगा? v2 क्या होगा? 2v1। अब ke2 बाई ke1 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? बोलो, हाफ m v2 का स्क्वायर, हाफ m v1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अच्छा, अब ये हाफ कट गया, mm कट गया, क्योंकि एक ही बॉडी है ना, मास तो सेम ही रहेगा। अब v2 की जगह लिख दो 2v1 बाई v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ये 4 क्या मतलब होता है? अब देखो, इस 4 का मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1। मतलब ये हो गया कि इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो कांस्टेंट रहता है अगर सेम बॉडी है तो अगर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी को हाफ करने से फिर वही काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, और वेलोसिटी को 1/3 करने से काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो जाएगा। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है। ओके, अब एक और हम लोग सम, इंटरेस्टिंग सम करते हैं, उसके पहले हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। एक और सम करते हैं, ये एग्जाम में वैसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, तो ये बुलेट का मास दिया है 5 ग्राम और वेलोसिटी कितना दिया है? 500 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, इट पेनिट्रेट्स द फिक्स्ड टारगेट विथ ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। अब ये बुलेट क्या हो रहा है? अब ये रेजिस्टिव फोर्स हो गया 1000 न्यूटन। मैं समझा दे रहा हूं। ओके, अब ये एक फिक्स टारगेट को पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसका जिसका रेजिस्टिव फोर्स कितना है? वो जो बुलेट है वो मान लो किसी टारगेट को पेनिट्रेट कर रहा है। ओके, अब वो जैसे ये बुलेट आया, अब ये बुलेट आकर, ये टारगेट तो बहुत पतला लग रहा है, चलो एक मोटा टारगेट लेते हैं। अच्छा, अब ये इस बुलेट को इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। ओके, तो अब जब ये बुलेट इस टारगेट में पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा कि इट विल ऑफर सम रेजिस्टिव फोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स? 1000 न्यूटन। क्योंकि ये बुलेट तो जैसा एयर में जा रहा था, क्या उतना स्मूथली इसमें जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, तो इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 1000 न्यूटन। ओके, क्लियर हुआ? नाउ वी हैव टू, अब पूछा है क्या, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द डिस्टेंस पेनिट्रेटेड। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो तो आराम से मिल जाएगा ना, कि हमको तो यू पता है। और तो देखो वो क्या रहा है यहां पे, मान लो ये टारगेट है और ये बुलेट है, तो जब ये यहां था इसका स्पीड इतना था 500 मीटर पर सेकेंड, और ये कुछ दूर जाकर मान लो इसके अंदर में यहां पर जाकर ये अटक गया, रुक गया, इतना दूर गया। तो ये कितना दूर गया? यस, वो हमको फाइंड करना है। ओके, नाउ लेट्स डू इट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वो तो बहुत आसान है। तो एक नंबर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम। यहां पर देखना
मास जो है वो ग्राम में है, बट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? केजी. तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम. हाउ? डिवाइड बाय 1000 इनटू व्हाट इज वी? वी कितना है? 500 इनटू, अच्छा ये बुलेट को हटा दे रहे हैं, 500. तो अगर हम सब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स हम लोग का? 125 जूल. तो कितना आया? 125 जूल. ओके. अब पूछा है क्या कि डिस्टेंस पेनिट्रेटेड, कितना पेनिट्रेट डिस्टेंस उसमें यहां पे ये गया है. तो सॉरी यहां पे ये होगा 125 है, ये भी 5 है, तो दिस विल बिकम एक्चुअली 625 जूल. ओके. 125 इंटू 5 है, यहां भी 5 बचा हुआ है, तो ये बन गया 625 जूल. अब डिस्टेंस पेनिट्रेटेड, तो हम लोग कैसे स्टार्ट किए थे? फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस. याद आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन किए थे वो क्या था? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स. तो वर्क डन का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो नाउ वी नो काइनेटिक एनर्जी, और एफ तो दिया हुआ ही है, तो एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा 625 बाई एफ. एफ कितना स्टूडेंट्स? 1000. तो इसको लिख दो 0.625 मीटर, या तुम चाहो तो लिख सकते हो 62.5 सेंटीमीटर. तो दिस वे वी हैव डन दिस सम्स. ओके. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कन्वर्सन ऑफ, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? जब हम बोलते हैं कि इट इज कंजर्व्ड, कंजर्व का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं मास इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल अमाउंट में चेंज नहीं आता है. जैसे मान लो मेरे पास इस पॉकेट में 10 रुपए है, मैंने क्या किया? 5 रुपए इस पॉकेट में डाल दिया, तो इस पॉकेट में तो 5 रुपए ही हो गया, कम हो गया, पर मेरे पास अभी कितना पैसा है? 10 रुपए ही है. तो उसी तरीके से हम जब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है? एनर्जी न तो बनता है और नहीं तो नष्ट होता है. तो वी कैन से दिस. तो व्हाट इज द लॉ? क्या लिखोगे? एनर्जी, यू नो दिस लॉ, तुम छोटे क्लास से लॉ पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. It can just be converted from one form to another. मतलब एनर्जी को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बस. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, करंट को लाइट में बना सकते हैं, पर हम चाहे कि लाइट बनाएं वो पॉसिबल नहीं है. इफ आई नीड लाइट, आई विल गेट लाइट एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आई विल गेट हीट एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. तो इलेक्ट्रिक करंट, या जैसे आप लोग मोबाइल में यूज कर रहे हो, ओके, तो मोबाइल में बैटरी है, उस बैटरी के में एनर्जी के से मोबाइल चल रहा है. तो वी हैव टू गिव वन एनर्जी एंड देन वी विल गेट द अदर एनर्जी. वी कांट क्रिएट एनर्जी, एंड नाइदर द एनर्जी दैट वी हैव दैट विल गेट इनटू that will be destroyed. No, that energy will be dissipated in some other forms. So this is the. तो एक क्वेश्चन बहुत बार आईसीसी में आता है, एक डेरिवेशन है कि एक बॉडी को हम एक हाइट से गिरा रहे हैं. मान लो एक हाइट से गिरा रहे हैं, ठीक है, इसको हम एक हाइट से गिरा रहे हैं. तो ये जब नीचे गिर रहा है तो एट एवरी पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया कोई भी अदर पॉइंट, और ग्राउंड पे चला जा रहा है. तो एट एवरी पॉइंट इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये टोटल एनर्जी क्या है? वो ऑलवेज कांस्टेंट है. ओके. तो इसको हम लोग अब एक इसको करते हैं.
तो प्रूव दैट, फॉर्मूला हेडिंग दे दो क्या, टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बॉडी पहले यहां पे था, ये ए पॉइंट है, दिस इज द ए पॉइंट, यहां पर बॉडी है हाईएस्ट पॉइंट, जिसका अर्थ से कितना डिस्टेंस है ग्राउंड से, h हाइट है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम लोग एज्यूम करेंगे कि कुछ देर बाद बॉडी तो नीचे गिर रहा है, यहां तक गिरेगा, कुछ देर बाद बॉडी यहां पे आया, बी पॉइंट। व्हाट इज बी पॉइंट? एनी पॉइंट इन द फ्लाइट, मतलब बॉडी जो नीचे गिर रहा है इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, ये बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर, एनी पॉइंट। और उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, तो ये सी हो गया, द पॉइंट ऑन ग्राउंड। और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो गया ए से बी का, वो कितना है, वो x है। तो अगर वो x है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये h माइनस एक्स है ना, क्योंकि ये पूरा हम लोग क्या माने थे, पूरे को हम लोग क्या लिए हैं, पूरे को हम लोग लिए हैं कितना, दिस इज द केस। ओके, अब देखो बॉडी मान लो मेरे हाथ में है, हाईएस्ट पॉइंट में है, तो एट ए क्या होगा, ए इज व्हाट, हाईएस्ट पॉइंट। बॉडी यहां पे रेस्ट पे है ना, तो बॉडी जब रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में डेरिवेशन देख चुके हैं, एम जी एच, कितना होगा स्टूडेंट्स, एम जी एच। ठीक है, एट बी तो टोटल, सॉरी एक मिनट, तो टोटल एनर्जी यू के प्लस पी 0 प्लस एम जी एच कितना होता है, एम जी एच। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, total of potential and kinetic energy of the body at A, that is the highest point, is how much, mgh। ठीक है, अब आते हैं B। B क्या है, एनी पॉइंट, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और ग्राउंड है इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, तो इसका स्पीड यहां पर कितना था, u था, और मान लो जब ये यहां पहुंचा तो इसका स्पीड, बॉडी का स्पीड, तो ड्यू टू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे h नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बॉडी तो ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया। तो यहां से u कितना है, अच्छा पहले हम लोग मान लो फॉर्मूला में h लिख दिए या s लिख दिए, कुछ भी लिख दो, तो ये v स्क्वायर हो गया, और ये कितना है, 0 प्लस 2gx। तो यहां से v स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला, तो देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला, 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो, ये जो बॉडी यहां पे पहुंचा, इस जगह पे जब बॉडी है हवा में, जब बॉडी यहां पर हवा में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम 2gx, कितना निकला, mgx। ओके, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, mgx। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये बॉडी कितने हाइट पर है, mgh माइनस एक्स, इतना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉडी, h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh माइनस एक्स। अब क्योंकि बॉडी यहां पर जब है तो इसका कुछ काइनेटिक भी होगा, कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो टोटल ऑफ दिस, तो u क्या होगा,
mgx प्लस mgh माइनस x। ऐड करने से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये mgx कट जाएगा, मिलेगा क्या mgh, जो यहां पे था। और ये बी पॉइंट है क्या, एनी पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एट एनी पॉइंट टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जो भी कह लो, इज व्हाट mgh। ओके, तो ए पर mgh, कहीं पर भी mgh। अब आते हैं ग्राउंड एट सी। सी मतलब लोएस्ट पॉइंट। जब बॉडी सी पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, हम लोग इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, यही फॉर्मूला से। यहां पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, यहां पर तो x डिस्टेंस कवर किया था ना, पर ये एट सी पे क्या होगा, एट सी v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा। यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, h हो जाएगा, फुल डिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m 2gh, क्या मिला हम लोग को mgh। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरी पॉइंट, एवरी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अर्थ इज जीरो। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh ना। अगर कोई बॉडी अर्थ पे लाई कर रहा है तो उसका हाइट कितना है, उसका हाइट जीरो है, तो जीरो इंटू कुछ भी क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, यहां पर भी mgh प्लस जीरो इज इक्वल टू mgh। तो प्लीज आई होप यू आर आल्सो नोटिंग डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द आईसीएसई। तो अब क्योंकि ये जो वीडियो है दैट इज ओनली फॉर आईसीएसई। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसी चीज को हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। लेट अस ड्रॉ ए ग्राफ टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्रीली बॉडी। अब देखो जरा अच्छा से, ये बॉडी सपोज ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी हो गया और ये क्या हो गया, एंड दिस इज द डिस्टेंस। ओके, दिस इज द डिस्टेंस। अच्छा, नाउ अब ये क्या मेजर कर रहा है, हाइट, हाइट। ओके, और ये एनर्जी। अब हमको पता है कि अगर कोई बॉडी, ये जीरो मार्क है, जीरो मार्क पे किस, तो मेरे पास दो एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक। ये दोनों का ग्राफ हम इसमें दिखाएंगे एक साथ। जीरो पे जब हाइट जीरो, ग्राउंड पे किसका एनर्जी जीरो होता है, पोटेंशियल या काइनेटिक का, पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट के ऊपर में। तो पोटेंशियल एनर्जी का हाइट पे एनर्जी जीरो होगा, h इक्वल टू जीरो, p इक्वल टू जीरो। और जैसे 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 हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी लिनियरली बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, mgh। तो mg तो कांस्टेंट है ना। मान लो एक हाइट 1 मीटर हो गया तो 1 mg हो गया, हाइट 2 मीटर हो गया तो 2 mg हो गया, हाइट 5 मीटर हो गया तो 5 mg हो गया। तो हाइट इज इंक्रीजिंग लिनियरली विथ डिस्टेंस। इसको हम लोग जब लिनियरली इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग ऐसे लाइन से दिखाते हैं, लिनियर रिलेशनशिप। तो ये क्या हो गया, ये हो गया किसका एनर्जी, ये कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होता है, अभी हम लोग क्या प्रूफ किए देखेंगे कि जब कोई बॉडी अर्थ पे गिर रहा है, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग ऑन अर्थ एट द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। ओके, तो इसका मतलब इस जगह पे जो है, चलो अगर इसको हम हाईएस्ट पॉइंट ले लेते हैं तो ये तो जीरो है, तो ये जीरो हाइट पर क्या होगा, जीरो हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है, ये एच मान लिए मैक्सिमम हाइट, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ये आ गया। तो अब यहां पर जीरो हाइट पर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, और यहां एच हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गिरते 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 यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि जैसे हम कोई बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। मान लो हम एक बॉल को ऊपर फेंके, ठीक है, तो जितना स्पीड उसका मेरे हाथ में था उसका स्पीड डिक्रीज होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फॉर अ मोमेंट वो बॉल रुक जाता है और फिर नीचे गिरना शुरू करता है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। वेलोसिटी 0 का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0। और कहां पे मैक्सिमम था? जब वो वापस अर्थ को हिट करेगा उसका स्पीड मैक्सिमम होगा, यानी कि जब हाइट 0 होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसीलिए ऐसा ग्राफ बनता है। पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी वो क्या है, वो ऑलवेज कांस्टेंट है। देखो ये हो गया, ये जो लाइन हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं ये क्या है, किसका है? ये हो गया टोटल एनर्जी। कैसे? सपोज लेट अस कंसीडर ए हाइट ऑफ दिस, मान लो बॉडी इस हाइट पे है, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तुम बोलोगे सर इतना होगा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ओके। और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो ब्लू से बना है। अब इसको तुम अगर यहां पे देखोगे कि ये जो डिस्टेंस हम बनाए हैं दैट इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया क्या, ये हो गया काइनेटिक, ये हो गया पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी ये लाइन बन गया, ठीक है। अब तुम वही ले लो, मान लो ये इस हाइट पे चलते हैं, अब हम लोग हाइट थोड़ा चेंज कर देते हैं, हाइट को इंक्रीज कर देते हैं। इस हाइट पर क्या होगा? इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी पहले इतना था ना, अब इतना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। पर काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गया। अब इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं तो क्या हो गया, तो ये चीज यहां लगा देंगे तो टोटल एनर्जी फिर से क्या होगा, से वहीं पे पहुंच जाएगा, तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो पोटेंशियल, जब कोई बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल काइनेटिक इसमें क्या होता है, बढ़ता रहता है। मान लो कोई बॉडी इन सम अप कर रहे हैं कि अगर कोई बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग। और जब बॉल नीचे आ रहा है तो ऑपोजिट केस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग। अब उसी चीज को हम लोग फटाफट एक पेंडुलम के मामले में समझ लेते हैं। व्हाट इज पेंडुलम? आई नो नीड टू से इन क्लास 10 टू क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं, पेंडुलम क्या होता है आप सबको अच्छा से पता है। अब देखो, तो ये हो गया पेंडुलम का मोशन, ये हो गया मीन पोजीशन और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो ये सपोज ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन वो कितना है, वो h हाइट पर है, h हाइट पर, द हाइट इज h। कितना हाइट इसका, ये जो हाइट है वो कितना है, दैट इज h। तो जब ये अभी हम लोग क्या देखे थे, जब बॉडी ऊपर जाता है तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, काइनेटिक डिक्रीज करता है। तो इस जगह पे मीन पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, यही है इसका मैक्सिमम हाइट, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, mgh। अब जब ये यहां आता है मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, mgh, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, 0। फिर जब यहां पहुंचेगा तो यही वाला रूल यहां पे भी अप्लाई होगा, और इन बिटवीन मान लो कहीं मिडिल पॉइंट पे तो उसका कुछ काइनेटिक भी है कुछ पोटेंशियल भी है, उसका डेरिवेशन हम लोगों को क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, वो तो हाई क्लास में पढ़ोगे, 11 में पढ़ोगे। और यहाँ पे कुछ काइनेटिक भी होगा कुछ पोटेंशियल भी होगा, लेकिन दोनों का ऐड करने से कितना आएगा, mgh आएगा। जैसे कि हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी में देखे थे, ठीक है, यहाँ भी वही होगा। मान लो बॉडी यहाँ बॉब यहाँ पर है तो उसका कुछ काइनेटिक भी होगा कुछ पोटेंशियल भी होगा, बट टोटल विल बी व्हाट, mgh। तो दिस टू केसेस, तो हम लोग दो केस को पढ़ चुके हैं। कौन कौन केस पढ़े, अबाउट द थ्रोइंग ऑफ द स्टोन, ओके, एंड अबाउट द पेंडुलम। इन बोथ केसेस वी हैव स्टडीड दैट व्हाट, हाउ इज द रिलेशन ऑफ द इज।
अब इसी चीज को अच्छा समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं, एक ही न्यूमेरिकल कर पाएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को किया जाएगा। इस चीज को अच्छा समझने के लिए हम लोग एक सम्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इज कंप्लीट, नाउ टू अंडरस्टैंड द एग्जाम कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्सन वी आर डूइंग अ सम। देखो एक बॉडी इस तरीके से पाथ में मूव कर रहा है, ये दिस इज ए, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। ओके ठीक है। ये जो ए पॉइंट है, दिस ए इज एक्चुअली एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। ओके, एंड दिस सी इज हाइट ऑफ 12 मीटर, and this is actually a height of 8 meter. Okay, तो क्वेश्चन है, a smooth sphere of mass 8 kg rolls on the curved path। तो स्फीयर को हम लोग एक बॉल को यहां से एक बॉल को डाल रहे हैं, बॉल यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से ऐसे, ये फ्लैट डिस्टेंस हो गया, ऐसे ये रास्ता जाएगा। दिस इज द पाथ ऑफ द बॉल। मास ऑफ द बॉल इज हाउ मच, कुछ भी ले लेते हैं 8 kg। ठीक है, तो ये बॉल यहां पर रेस्ट में है, इसको यहां से ड्रॉप करेंगे तो इस रास्ते से होते हुए ऐसे जाएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ द स्फीयर एट ए, तो फर्स्ट चीज क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी। पहला बात, ये स्फीयर ए पे रेस्ट पे है, तो चलते हैं फटाफट करते हैं। तो एट ए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। m कितना है 8, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और h कितना दिया हुआ है 30, तो कितना आया 8 3 या 24, 2400 जूल। ये क्या निकला पोटेंशियल एनर्जी। अब बोला क्या, ये हो गया पहला पार्ट। फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एट बी पर क्या होगा, तो एट बी देखो, एट बी पोटेंशियल एनर्जी कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 0 ना, 0 होगा। तो क्यों 0 होगा, क्योंकि हाइट तो बी का तो हाइट 0 है, बी पॉइंट इज ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये पूरा एनर्जी क्या बन जाएगा, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो mgh था, ग्राउंड पर भी mgh है, तो और वो काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 2400 जूल। ओके, एनी प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, जो टोटल एनर्जी यहां होगा वही यहां होगा, वही सी पर होगा, वही डी पर होगा, कहीं भी वही होगा, टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अब देखो, ये हो गया थर्ड पार्ट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एट सी। अब सी पॉइंट का काइनेटिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम लोग इस तरह सम में काइनेटिक तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो पता नहीं है, सी का वेलोसिटी वहां से नीचे उठ के फिर उठेगा तो स्पीड कितना होगा तुमको नहीं पता, नो प्रॉब्लम। हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हैं एट सी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट्स, mgh। m कितना है, m हो गया 8, g कितना है 10, h कितना है c का 12 बैठ जा 960 जूल। तो अब देखो, ये जो बॉडी जब यहां पे पहुंचता है तो उसका पोटेंशियल कितना हो रहा है 960 जूल, टोटल एनर्जी कितना है 2400। तो इसका मतलब काइनेटिक कितना होगा, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लो। तो क्योंकि टोटल एनर्जी तो यहां पर भी वही रहने वाला है ना, यही तो कंसेप्ट है, टोटल एनर्जी तो यहां पर भी उतना ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या हो जाएगा 2400 माइनस 960। ओके, नाउ यू सब्ट्रैक्ट इट, you will get the answer whatever। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब अगर डी पे मैं अब आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, यू डू इट, कुछ नहीं, इसको 8 कर देना और फिर जो आएगा उससे लेस कर देना, काम खत्म। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो आई होप whatever we have done in this video is very clear
एंड प्लीज यू हैव टू प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम लोग कुछ आईसीएसई क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।